Guys, in the last lecture, we completed till physical properties of haloalkane halorine. And today we are going to start with chemical properties of haloalkane halorine. Is the awareness so low today? Okay. So first of all, tell me guys, आप लोगों ने जो भी चीज आपको पता चली लास्ट क्लास में that you are having difficulties in few topics, did you try to complete them? Aisha, tell me. Yes, Aisha. Aisha, I think you did not have much difficulty in the last class, as I remember. Fia, did you watch that lecture on organic conversion? Yes, Fia. Fia, am I audible? Yes, not here. Over. And fine. I remember a few more people. Rabba, you had some difficulty na, in the last lecture. Yes, at the starting I had difficulty, and then later my net got disconnected, so I didn't attend the full lecture. So you did not did you watch the recording? Yes, I watched the recording and the PDF which you sent. I also go through with that. Achha, so did you identify topics in which you are having difficulty in haloalkane halorine? Yes, the main difficulty I'm having is the IUPAC naming. IUPAC naming. Yes, sir. Okay, fine. So you attended the classes of IUPAC naming, Yes, sir, I and attended the classes of IUPAC naming. like initially, then when we did in the summer vacations, you have attended those classes. Yes, I have attended those classes. Okay, so what will you do now? I mean, you have that. क्या I दिक्कत हो have रही है? Structure to name or name to structure? it's like structure to name. Structure I can make, but the naming is the problem. Structure to name you are having. So you just apply that functional group unsaturation parent and subsequent. ठीक है? And like you do this, and from here what you will identify is where you are exactly having problem. You are having problem in identification of parent, you are having a difficulty in identification of substituent, or you are having difficult, you can identify the substituent but you cannot name the substituent. Okay, so the more you boil down to like what the exact problem is, the easier it will be for you to solve it. Okay, Rabba? Okay, sir. For sure, I mean the complete IUPAC nomenclature will not be a problem. You'll be having problem in some certain cases are there which are very rare. They have been asked.
एक जो आपके पास लाइक इन द लास्ट लेक्चर वी हैड अ वेरी वियर्ड नेम ना, yeah, it's 2-trichloromethyl 1,1,1,2,3,3. If this type of naming you're having difficulty in, then I won't say that you spend a large amount of time on this type of nomenclature. बाकी अगर आप कर ले रहे हैं सारे के सारे जो simple nomenclature है ना, for example, you see most of them are simple only. If you're having difficulty in the simpler ones, for example, CH2, CH, and CH2Br, you cannot name this one. Then I would say that you will have to go through, like, you have to focus like what problem you're having. ठीक है? सो पहले आप ये देख लीजिए कि प्रॉब्लम हो कहाँ रही है एग्जैक्टली इन दीज सेक्शंस, फंक्शनल ग्रुप में, अनसैचुरेशन, पेरेंट या सब्सिट्यूएंट में, एंड वेदर द प्रॉब्लम इज इन आइडेंटिफिकेशन और यू डोंट नो व्हाट टू राइट, यू कैन आइडेंटिफाई बट यू डोंट नो व्हाट टू राइट, ठीक है, तब आप उस पर काम कर सकते हैं. फाइन रबा? Okay, sir. यस. एंड आई थिंक we don't have Amna and Sitra today. Amna Sitra का क्या स्कूल है क्या? स्कूल तो पता नहीं खैर. एंड Fia, am I audible? What happened, Fia? I cannot hear you at all. Okay. Yes, sir, you're audible. Yeah, I was asking, did you watch that organic conversion lecture? No, sir. Why? कल तो छुट्टी भी थी. Yes, Fia. Sir? Why did you not watch? Sir, you didn't send it, you didn't resend it, right, sir? यार Fia, see, you have certain responsibilities, right? No, sir, actually, I had many physics classes pending this time. So I was watching that, sir. ये तो मत बोले ना that you have not resent. Like अगर if you have, and I have sent it, ठीक है, उसी दिन हमने भेज दिया था. Okay, sir. I also told all of you guys to watch that lecture. ऑर्गेनिक कन्वर्जन में दिक्कत हो रही है तो फिर सी वहां से आप स्टार्ट कीजिए कम से कम, ठीक है. इफ यू आर नॉट गोइंग इवन टू स्टार्ट, देन फिर आप सोचेंगे कि सिर्फ सर ही सब कुछ कराते रहे, देन इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प ना. चलिए, ट्राई दिस Sorry, वन. sir, I'll watch it. ओके. yesterday there was no class, मरियम. कल छुट्टी थी. and you are having high fever right now. अभी तबीयत ठीक नहीं है आपकी? अरे यार आप लोग ख्याल रखें अपना. इतना ज्यादा बीमार पड़ते हैं आप लोग, अल्लाह अकबर, कि क्या ही बोले आदमी. यार इन these few weeks or months, I would say ना, यार please, like, you have to be extra careful. Like what to do, you get sunlight, you drink water generally, है ना, at least like drink good amount of water. ये तो in general है, लेकिन इस टाइम पे ज्यादा फोकस करना है आपको. you have to be like proactive towards your health. तबीयत खराब होने ही नहीं देना है. make a lot of दुआज, ठीक है. चलिए, okay, fine. Chiral center, a carbon atom which is having 4 different groups attached to it. Carbon atom that is having 4 different groups attached to it. I will give 10 more seconds for this question. 10, 9, 8, 6. 8 का तो हम 6 ही बोल देता ना. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and 0. Yeah, so most of the people have answered this correctly. जिन्होंने भी आंसर किया, they have answered it correctly. Iram, correct. Shahid, Aisha, Rachita, Deborah, Safia. There are certain people who have not answered. Note कीजिए, chiral center problem, ठीक है ना. सी यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कौन सा सवाल आपसे नहीं हो रहे. जनरली अभी आपके दिमाग में ये रहता है क्या पढ़े. बहुत सारे बच्चों के दिमाग में भी क्या रहता है कि क्या पढ़ना चाहिए, अभी क्या पढ़े. सफिया का आंसर सही नहीं. सफिया, डिड यू एडिट योर आंसर? गेट इट रॉन्ग. अच्छा, I don't know. I will see. I don't know the answer right now. ठीक है, let me see.
This carbon atom, it is having a CH3 also. यहाँ पे एक CH3, यहाँ पे एक CH3, so this is not going to be chiral. This carbon has CH3, hydrogen, chlorine, and then CH2Br. This will be chiral. And then we have this carbon atom. This carbon atom is having CH2OH, hydrogen, OH, then again CH2OH. Okay, so these two groups are same. That is why it will not be chiral. Here we have 2Br, that means it will not be chiral. Now let me make all of these carbons. Okay, this carbon atom, it is having the first one, A1. It is having a CH3 group. Carbon, it is having a CH3 group. Then it is having a hydrogen. Then it is having a Br. Then it is having one more CH3. So you can see there is one CH3 and one CH3, two same group. That is why it is not chiral. All the four groups should be different. The second carbon atom, it's carbon CH3 that is attached to this carbon atom. Further, it is attached with hydrogen. Then it is attached with chlorine. Then it is attached with CH2, which is further attached with Br. So here you can see none of the groups are same. CH3, Cl. So this will be the correct option. Let me also see the other options. है ना? तो C में है आपके पास. You have OH, which is bonded to CH2, which is having a carbon atom. This carbon has hydrogen. This carbon has OH, and here it has CH2OH. Now this CH2OH and the CH2OH, these are same groups on this carbon atom. So this will not be chiral. This cannot be chiral. In the D, you can already see that. D ka. You can see you have carbon, which is bonded to CH3, which is bonded to Br and one more Br. Here we have two bromine atoms. That is why this will not be chiral. Okay, this will not be chiral. Make sense, everyone? Yes or no? Please tell me, guys. Yes. Just give me a second, and we'll move to the next question. The next question is asking you guys, consider these three molecules. Roll up, Marim Khatun. Question. One thing, एक चीज आप समझ लीजिए. You don't have to write the questions. You have to attempt the questions and note down क्या चीजें. आप आंसर करेंगे हमको चैट में, कुछ लिखना नहीं है आपको. No questions you have to write. PDF आपको मिल जाएगा ना. सुन लीजिए एक बार साइड लो. What you need to do, you need to answer the questions on the chat box, MCQs को. If you are having subjective questions, then you will answer it on the WhatsApp. ठीक है? Or if it can be written in one word type of answer, तो फिर आप उसको chat में लिख देंगे. What you need to do, if you cannot answer the question, you don't have to write the question. What you will write the topic where you are having problem. So this is regarding chiral carbon. So this is identification of chiral carbon. You will note down identification of chiral carbon. It is a problem for me. Then reactions of SN1, SN2 reactivity. इसमें problem है. ठीक है? So don't need to write the question because PDF हम भेज देंगे, वहां से आप लोग copy कर लीजिएगा जो भी copy करना होगा. So they are asking this, consider the following compounds, and then the question is, see all of these are ना previous year papers है ना, तो हम generally वही सारे सवाल लेके आ रहे हैं जो पहले आ चुके हैं. The correct order for reactivity towards SN2 reaction, चलिए, which will be most reactive. उसके बाद अगेन ज्यादा नहीं, I will what 15 seconds का हम एक जनरल टाइमर लगा दे रहे हैं. क्वेश्चन डालने के बाद 15 seconds would be enough, I guess. चलिए, 15 seconds have started. Send your answers. Don't need to write the question. हाँ, सॉल्व करने के लिए कुछ लिखना है आपको, वो लिख सकते हैं आप, है ना, in order to solve it, but no need to write the question. 15 seconds तो बहुत जल्दी होगा. मेरे 10 seconds से भी जल्दी होगा 15 seconds. I think 30 seconds will be better. Just give me a second. 30 seconds में होना चाहिए आंसर. 10 seconds is very low. बहुत कम है. ठीक है, 30 seconds का टाइमर है. एक भी आंसर नहीं आया अभी तक. Oh my God. SN2 reaction, steric hindrance, याद कीजिए. Classify the 1, 2 and 3 in 1 degree, 2 degree, 3 degree में classify कीजिए. Oh my God.
कोई आंसर नहीं आ रहा, ये नहीं, अच्छा ये सबका ये है। यू विल आंसर मी इन द चैट। अरे भाई सेंडिंग नहीं आंसर, मेरा व्हाट्सएप जूम काम नहीं कर रहा है क्या? क्या हो रहा है? कोई ऑप्शन सही नहीं है क्या? ओके, 30 seconds आर ऑल्सो ओवर, सो प्लीज सी। देर आस्किंग फॉर SN2। अच्छा अब आंसर आ रहा है, अच्छा अच्छा। सी हियर, देखिए देखिए देखिए। सो दिस इज व्हाट, दिस अल्फा कार्बन, दिस इज 2 डिग्री, दिस इज व्हाट, दिस इज 1 डिग्री। एंड यहाँ पे इसको ध्यान दीजिएगा, दिस इज अल्फा अनसैचुरेटेड, दिस इज हैलोअरीन। ठीक है, सो हैलोअरीन दे डू नॉट गिव SN2 रिएक्शन, SN ही नहीं देता, SN1 भी नहीं देता, SN2 भी नहीं देता। तो थर्ड सबसे कम होना चाहिए, थर्ड की रिएक्टिविटी सबसे कम। आप सारे ऑप्शन देखो, थर्ड सबसे कम है, बस ये वाला ऑप्शन है करेक्ट। दैट्स इट, यू डोंट इवन हैव टू सी एनीथिंग एल्स। दी हैलोअरीन्स दे डोंट शो SN एट रूम टेम्परेचर, मतलब वो देता ही नहीं है इन जनरल। उसके लिए वी हैव टू सेट अप स्पेसिफिक कंडीशंस, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर। ठीक है, तो सी ऑप्शन। गॉट इट गाइस? प्लीज टेल मी, any doubt here, any doubts, any doubts, tell me guys, any doubts? अरे बोलो भाई, yes or no guys, any doubts here in this question 29? आंसर बहुत सारे लोगों को नहीं आया था। No, what about others? Iram, Fia, Krishna Priya, sir, how the first one is 2 degree? This is the alpha carbon, it is connected to a carbon atom here and a carbon atom here. Since it is connected to 2 carbon atoms, it will be 2 degree. Make sense? आपको ये नहीं दिखना होता क्लोरीन कितने कार्बन से अटैच, क्लोरीन तो एक ही कार्बन से अटैच्ड होगा, क्योंकि क्लोरीन की वैलेंस ही 1 होती है। यहाँ पे सीधी अल्फा कार्बन, दिस अल्फा कार्बन इज कनेक्टेड टू 2 कार्बन। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ये भाई क्या हो गया, थोड़ा सा फ्रेश अप हो जाए भाई, इससे तो काम नहीं चलेगा ना। चलिए अगला सवाल, ऑल ऑफ दीज आर केमिकल प्रॉपर्टीज ओनली, है ना? चलिए दिस, दिस इज अ बिट टिपिकल, थोड़ा सा ये टिपिकल है, अगर किसी को ध्यान आ जाए, तुक्का लगेगा या तो फिर किसी का। ठीक है, 30 seconds once again, 30 seconds. First of all, you have haloalkane. You react with Mg, you get a specific reagent मिलता है, और that reagent when it reacts with water, there is a Y type of question also, जिसमें ये रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ा है। Why this reagent is prepared in anhydrous conditions? वाटर के एब्सेंस में प्रिपेयर किया जाता है। अरे 30 seconds is once again over. Guys, one more 30 seconds for you. कोई आंसर नहीं आ रहा, what happened guys? आप लोग कुछ पढ़ के नहीं आएंगे आप लोग आज? किसी का आंसर नहीं आ रहा है? Oh my God. Oh, 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 oh. ठीक है, तो ध्यान देना है आप लोगों को, है ना? ये ठीक है, आई अंडरस्टैंड दिस, दिस क्वेश्चन कैन बी हार्ड बिकॉज यहाँ पे आपके पास एक, दिस इज नॉट अ रिएक्शन एज वी हैव लर्न इन द केमिकल प्रॉपर्टीज, बट आप देखिए हैलो एल्किन हैलोरीन, आई एम, हम आपको नोट्स में भेज रहे हैं ना, वेर यू हैव टू गो इन द नोट्स। लीविंग अ नेचर ग्रुप, देन वी हैव डिहाइड्रेशन, उसके बाद आएगा रिएक्शन विद मेटल मैग्नीशियम। ठीक है, ध्यान दीजिए, reaction with magnesium. I hope all of you understand that you are going to get what? You are going to get Grignard reagent. Now, Grignard reagent is very reactive, due to which it can even react with moisture and form alkane. Okay? So when Grignard reagent, it reacts with water, it forms alkane. So when you have methyl bromide, it reacts with Mg, it gives you methyl. Well, this is ethyl bromide. ठीक है, मेरे से mistake हो गया यहाँ पे। Ethyl bromide, ethyl magnesium bromide. It will react with what? Water, and will give you ethane. पता नहीं क्यों मीथेन लिख दिया हमने। खैर, it is going to give you ethane. Fine. So here also what is going to happen? It will give you alkene, that is C option. पहले ये क्या बनाएगा? MgBr, this is X. ठीक है, and it will react with water. Water के HOH में react करेगा. So this carbon atom, because it will be delta negative, because magnesium is metal, metal has a tendency to lose electrons, so it will give electron towards the carbon atom. This carbon atom will attack on the hydrogen. Why hydrogen? Because hydrogen is attached with oxygen, which is more electronegative, and oxygen is pulling electrons, making the hydrogen delta positive.
Now what will happen, this Mg will leave, ठीक है, Mg निकल जाएगा and you will get what, you will get simple alkane. This is a bit unconventional, लेकिन याद रहना चाहिए था, किसी को तो याद रहना चाहिए था. रिवाइज करके आए गाइस, रिवाइज करके आइए. Now moving on to another question. Any doubts here? Yes or no? Please tell me in the chat. Any doubt? Any doubt in this question of Grignard reagent? याद आया कि नहीं याद आया? Did you guys remember? Yes or no? Tell me कि alkane बनता है, कुछ याद आया? अरे यार आंसर तो करो, yes or no चैट में ही बोल दो. yes, आया, ठीक है, वेरी गुड. याद आना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए आप लोगों को कि ओ माय गॉड ये क्या ही पढ़ा रहे हैं सर, नया नया चीज. ठीक है, सी एवरीथिंग इज देयर इन द नोट्स इटसेल्फ. आपको सारे सवाल के लिए हम आपको नोट्स के में भेज सकते. ठीक है, चलिए रीड दिस क्वेश्चन. 30 सेकंड्स में आंसर आना चाहिए, लेकिन भाई बड़ा लेट लग रहा है आप लोगों को. Chlorobenzene is less reactive towards nucleophilic substitution reaction. Nitrogropane chlorobenzene increases the reactivity towards nucleophilic substitution reaction. See, for assertion reason questions, I have, I don't know, इस साल हमने शायद आप लोगों को स्पेसिफिकली नहीं बताया, बट आप assertions के लिए और reason के लिए क्या करेंगे, whether it is true or false. ठीक है, so if this is true, and एक और statement you will write assertion because reason. ठीक है, now if all the three statements are true, assertion is also true, the reason is also true, and assertion because reason is also true, then the option will be A. If assertion is true, the reason is true, but assertion because reason is false, then the option will be B. In the C option, you have when the assertion is true and the reason is false. So assertion because reason का कोई तुक ही नहीं बनता, you will not even have to see this. The option is C. And when the assertion is false, then आपको उसके आगे देखना ही नहीं है. The option is D. ठीक है, इस केस में रीजन ट्रू. ठीक है, ऑप्शंस आ रहे हैं अभी तो, चलिए. बट अगेन 30 सेकंड्स आर वे ओवर. क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव. सी आई थिंक दिस, ये सबको पता है दैट क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अभी भी हम लोगों ने पढ़ा हैलोअरीन्स आर नॉट रिएक्टिव. नाइट्रो ग्रुप इन क्लोरोबेंजीन इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अब किसी को अगर याद नहीं आ रहा है, देन टेल मी नाइट्रो ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग और डोनेटिंग. क्या करता है ये, W या D, विदड्रॉइंग या डोनेटिंग? टेल मी, is withdrawing or donating? Tell me in the chat jaldi se. Nitro group is what? In the chat please. It is electron withdrawing, it is electron withdrawing or donating? Tell me guys, answer kare. Nitro group is what? Electron withdrawing or donating? W और D, just W और D, जल्दी आंसर करें, है ना. लेकिन okay, fine, very good. See, most of you guys have answered correctly, but I don't know, फिर थोड़ा सा आपको रिवाइज करने की इन सब चीजों की जरूरत है, बेसिक्स को. That nitro group, these are not electron donating, these are electron withdrawing group. They are highly electron withdrawing group. ठीक, now when you have a chlorobenzene, ठीक है, it does not react with nucleophile because there is a repulsion. यहाँ आपके पास जो बेंजीन रिंग है, this is also electron rich, है ना. Nucleophile is also electron rich. But when you add a nitro group, here, then this nitro group is going to pull electron density. When it is going to pull electron density from the benzene ring, this benzene ring will become less electron rich, बोल सकते हैं, है ना, less electron rich. So in comparison to chlorobenzene, it will be electron poor. It is not purely electron poor, but in comparison to chlorobenzene, it is electron poor. And now there can be attack of nucleophile easily. So yes, nitro group in chlorobenzene increases the reactivity towards nucleophilic substitution reaction. और ये चीज भी नोट्स में मौजूद है. Now this, both of these are true, but chlorobenzene is less reactive towards nucleophilic reaction. But because nitro group तो यहाँ पे है ही नहीं. Assertion because reason वाला जो है ना, वो false होगा. ठीक है, chlorobenzene is less reactive towards nucleophilic substitution reaction because nitro group in chlorobenzene increases its reactivity. तो कुछ तुक ही नहीं बन रहा है इस सेंटेंस का. ठीक है, I hope you can see that. So it is false. The correct option will be B. Most of you have answered correctly. Now where you have to see, आपको अगर देखना है इसके बारे में, then you will go to nucleophilic substitution of haloarine.
Haloarenes show SN on two conditions: at high temperature and pressure. Second, placement of electron withdrawing group at ortho and para position. And you can see that we have also seen these reactions, है ना? प्लेसमेंट में क्या करना है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो पोजीशन या फिर मेटा पोजीशन या फिर पैरा पोजीशन, इन सारे पोजीशंस में. ठीक है, सो वी हैव सीन ऑल ऑफ दीज रिएक्शन. चलिए मूविंग ऑन, बैक टू क्वेश्चंस. किरण, आपको याद आ गया कि नहीं आया? यस किरण, यू आंसर्ड समथिंग एल्स ना. बाकी ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने बी लिखा था, आपने शायद क्या सी या डी लिख दिया था कुछ. किरण, एनी डाउट्स? टेल मी. अरे किरण नहीं है क्या आप? किरण, एनी डाउट्स? क्या ये कहाँ पे हो रहा है? पेस्ट नहीं हो रहा है क्या? चलिए, identify this reaction. What name reaction? No लिखी है. No doubt, I hope. The given reaction is okay. Yes, शायद correct. Very good. ओके, आई कैन सी दैट तैयारी नहीं है. केमिकल प्रॉपर्टीज तैयारी नहीं है बिल्कुल. लास्ट क्लास में फिर भी आंसर्स आ रहे थे, इस क्लास में तो बिल्कुल ही आंसर नहीं आ रहे हैं. व्हाट हैपेंड? रबा, यू हैव नॉट गिवन एनी आंसर. रबा, कैन यू प्लीज टर्न योर माइक ऑन? Yes, sir. क्या दिक्कत हो रही है बताइए. Sir, I've given the answer for first one. अरे हाँ, बहुत ज्यादा आंसर दे दिया आपने, फर्स्ट वन की. क्या हुआ उसके बाद? Here's what I'm not getting is the correct answer or not. अरे आप आंसर्स तो दो, फिर कम से Okay, कम sir. पता तो चलेगा ना. आंसर्स तो दो, कहाँ दिक्कत आ रही है? Okay, sir. आंसर दीजिए गाइस. ओके, सिमिलरली आई थिंक सफिया ने भी बहुत कम आंसर दिया है. यहाँ पे दो सफिया हैं, हम बता रहे हैं. देयर इज नो, देयर इज ओनली वन सफिया. वेयर इज द अदर सफिया? सफिया इरफान इज नॉट हियर राइट नाउ. सफिया इरफान इज नॉट हियर राइट नाउ. जस्ट लेफ्ट. ठीक है, चलिए. केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं है, बहुत लोगों का तैयार नहीं है केमिकल प्रॉपर्टीज. एटलीस्ट आई मीन ऊपर ऊपर से आप लोग देख के आ गए, आपने सही से पढ़ाई लिखाई नहीं की है. ठीक है, चलिए. अब आप लोग खैर देखिए, अब आपने सवाल पढ़ लिया ना. जब अब आप रिवाइज करेंगे तो ज्यादा अच्छे से रिवाइज होगा, बिकॉज नाउ यू नो हाउ द क्वेश्चंस विल बी देयर. है, तो दिस रिएक्शन इज वुड्स फिटिक रिएक्शन. अब मतलब इसमें आदमी कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता है. दिस इज फैक्चुअल क्वेश्चन. ठीक है, लॉजिकल नहीं है यहाँ पे कुछ कि अच्छा, मतलब आपको याद करना पड़ेगा ना. जैसे मेरा नाम सालिम है, सालिम आपको नाम याद करना पड़ेगा, दैट्स इट. सो दिस इज वुड्स फिटिंग. बट हम ये भी बता दे रहे हैं कि बाकी रिएक्शंस में क्या होता है. व्हेन यू हैव वुड्स रिएक्शन देन यू हैव ओनली हैलोअल्कीन. व्हेन यू हैव फिटिक रिएक्शन यू हैव ओनली हैलोअरीन. ठीक है, ओनली हैलोअरीन. In Woods fitting, you have one molecule of haloarine and one molecule of haloalkane. It reacts with sodium in the presence of dry ether, dry acetone, and it gives what? Alkene with the alkyl, the benzene ring, and the alkyl group of haloalkane. ठीक है, आई होप यहाँ पे सबको कंफ्यूजन रहा होगा. पर पता नहीं इरम, आपने नन ऑफ द अबव क्यों किया? बिल्कुल भी नहीं लग रहा था आपको ये. यस इरम, टेल मी. दोज हु हैव आंसर्ड ए और सी, उनका तो हमको समझ में आ रहा है. ठीक है, चलिए. थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, है ना, क्या है नहीं है, कुछ याद तो आया. व्हाट अबाउट यू इरम? चलिए, ट्राई दिस वन. भाई इरम, कैन यू प्लीज टर्न योर माइक ऑन इरम? एपिसोड होता है, सारे बच्चे लगता है. Yes, sir. हाँ, क्या हुआ था यहाँ पे? कुछ नहीं आपको समझ में आ रहा था? No, sir. या बिल्कुल याद नहीं था? No. कब रिवाइज किया आपने हालोल हालोरीन? हाँ, अभी सही आंसर आ रहा है. रेसमाइजेशन अकर्स इन. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड तारीफ, वेरी गुड मरियम खातून. रजिता, कैन यू प्लीज टर्न योर माइक ऑन?
Rajita, can you please turn your mic on? Yes, sir. कैसा लग रहा है आपको? Like, how are you feeling about this class? Like, most of the questions are going above your head, या फिर like you are really under prepared? No, sir. I mean, I'm confused, but then I can understand. Like, when you say the answer, I remember, like, it's ठीक है. So you need more practice of questions. ठीक है ना? Fine. Yes, sir. Yes, sir. Theory is ठीक है. Okay. And like whenever you guys are revising the notes, ना engage with it. ऐसे बिल्कुल ऐसे passive reading उसका मत कीजिए. Active reading में you try to remake the notes or you try to shorten it. कुछ तो आप उस notes के साथ ना कीजिए. सिर्फ पढ़िए मत उस चीज को. ठीक है? Or else like you try to think about questions that can come while you are reading it. That will take more time, but it will save you time in the long run also. ठीक है? ये अभी भी आपके पास है ना, ये पूरा लगभग आप अभी 26 तारीख हो रही है, तो हाँ, केमिस्ट्री एग्जाम से लगभग ऑलमोस्ट 1 महीना, सॉरी 2 महीने है केमिस्ट्री एग्जाम से ऑलमोस्ट. सो आप ये सोच सकते हैं इस बारे में, ठीक है, कि 2 महीने तक आपको रिवाइज ही करनी है चीजें. कुछ जो पोर्शन लेफ्ट है वो तो होता रहेगा, लेकिन मेनली अब आपका क्या है, रिविजन है. जो बचा हुआ पोर्शन है इट्स स्मॉल फॉर मोस्ट ऑफ यू गाइस, एंड द रिमेनिंग, आई मीन जो बचा हुआ पोर्शन तो थोड़ा कम है, जो कवर हो चुका है वो काफी ज्यादा. ठीक है, तो रिवाइज करने पे आप बहुत ज्यादा भी फोकस करें. ठीक है, ऑल ऑफ यू गाइस, ऑल ऑफ यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर. दैट इज SN1 में रेसमराइजेशन होता है. SN2 में क्या होता है? SN2 में होता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, एंड इन SN1 इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों होता है. दैट इज व्हाई रेसमराइजेशन अकर्स इन SN1 रिएक्शंस. ठीक है, मूविंग ऑन. सी यू कैन सी दैट बहुत सारे MCQs इससे बनते हैं. एंड वन मोर रीजन कि इसमें MCQs बहुत ज्यादा इस वजह से हैं, बिकॉज इन 2020 देयर वाज टर्म 1 एंड टर्म 2 पेपर, है ना? 2020 2020 में, हाँ आई थिंक दैट 2020 में 21 में ऐसे टर्म 1 टर्म 2 पेपर हुए थे. एंड इन टर्म 1 हैलोअल्किन हैलोरीन वाज देयर, एंड दैट टर्म 1 पेपर वाज कंप्लीटली MCQ वाला था. इस वजह से काफी सवाल MCQ के हैं इससे, है ना? चलिए, conversion of an alkyl halide into alcohol by aqueous NaOH is classified as what type of reaction? Alkyl halide से alcohol. आंसर आना चाहिए इसका. I mean, it's not difficult. आप लोग, I hope you guys are not writing you're not copying the questions. Just answer in the chat. इसमें लोगों को कंफ्यूजन, ठीक है. Now I hope why there can be a confusion here, because जब भी आप पढ़ते हैं तो इस चीज को आप ध्यान ही नहीं रखते कि ऐसा सवाल आ सकता है जब भी, है ना? दैट इज व्हाई यू गाइस आर हैविंग प्रॉब्लम. बट आप थोड़ा सोचिए इस बारे में. अल्काइल हैलाइड इज RX, it reacts with NaOH and it gives alcohol ROH. What is happening now? अब आप आंसर कीजिए. I hope many of you will try to change, they will want to change the answer. No, I hope you guys wanting to change the answer. देखिए क्या हो रहा है. Look at all the options. Look at all the options. ठीक है, I hope you guys are not answering now. ठीक है, देखिए यहाँ पे halogen is substituted by alcohol OH hydroxy group, so it is a substitution reaction. ठीक है, यहाँ पे जब भी आपके पास D वर्ड आ जाए ना, तो प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड होगा. डबल बॉन्ड इन प्रोडक्ट. सब्स्टिट्यूशन में देयर विल बी नो डबल बॉन्ड. सिंगल बॉन्ड इधर भी, सिंगल बॉन्ड उधर भी. एडिशन में क्या होगा, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड होगा. ठीक है, इन जनरल चलिए हम ये दिस आर फॉर 11th स्टैंडर्ड. डिहाइड्रेशन में क्या होगा, आपके पास सिंगल बॉन्ड्स हैं, सिंगल बॉन्ड के बाद आपके क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा. बिकॉज टू डिहाइड्रो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी हट रहा है, हाइड्रोजन भी हट रहा है, डबल बॉन्ड बनेगा. सब्स्टिट्यूशन में सिंगल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड ही रहेगा. ठीक है, इन एडिशन रिएक्शन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, डबल बॉन्ड टू सिंगल बॉन्ड. इन डिहाइड्रेशन आल्सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, सिंगल बॉन्ड है उससे क्या बन जाएगा, डी आ गया ना, इट विल बी डबल बॉन्ड. ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
फॉर दिस आई मीन यू रियली कैन नॉट राइट वेर यू आर हैविंग डिफिकल्टी, बस आपको नोट्स पढ़ने का एक नया तरीका मिल गया, दैट यू हैव टू आल्सो रिमेंबर व्हाट टॉपिक इज गोइंग ऑन द नोट्स, है ना, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर ही हम लोग ने पढ़ा है। तो व्हेनेवर यू आर रीडिंग अ रिएक्शन, तो आपको ये पता होना चाहिए किस तरह का रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे। So there are few D, sir, it is becoming difficult for me to sit and study. Can I leave? हाँ fine. मैं खाते हूँ, you're not feeling good ना? You can leave, no problem. आप बाद में लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक है? दवाई वाई लीजिए थोड़ा सा, ठीक है ना? देखिए कैसे तबीयत खराब हो रही है आप लोगों की। चलिए, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है? अंडरलाइन दिस वर्ड, लीस्ट रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव पूछा जाता है तो इसको अंडरलाइन करिए, मोस्ट रिएक्टिव बताना है आपको, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा। चलिए, I will give you guys 30 seconds more for the answers. बहुत कम आंसर्स आ रहे हैं इस सवाल के लिए, तो बहुत कम, 1 2 3 आंसर्स ओनली टिल नाउ। चलिए, दिस इज ओवर। नाउ प्लीज सी, नाउ दिस कार्बन एटम, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अल्फा है, अल्फा में क्या है? अनसैचुरेशन। C6H5, इट इज बेंजीन, दिस इज आल्सो अल्फा अनसैचुरेटेड, ठीक है? CH, this chlorine, it is attached with carbon atom, this is also alpha unsaturated. Here we are having only the D option, which is not alpha unsaturated. See, alpha unsaturation, it reduces the reactivity of SN. ठीक है, दिस इज अ नोट इन योर टेक्स्ट नोटबुक, आपने देख पढ़ा है हमने, अल्फा एनसैचुरेशन ऑलवेज डिक्रीजेस द रिएक्टिविटी ऑफ एसएन। तो ये सारे के सारे रिएक्टिव कम होंगे, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है? सो दीज आर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, ठीक है? एमसीक्यूज में मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए, आप लोग से मिस्टेक्स हो रहे हैं, दैट इज मोर, थोड़ा सा डिफिकल्टी है, पता नहीं क्यों। ये आपके पास क्वेश्चन है, एंड दीज क्वेश्चंस आर एक्चुअली अ पार्ट ऑफ केस बेस वाला। The passage is something like this. And this is the passage. ठीक है ना? इसमें से कुछ चीजों का आपको आंसर आना चाहिए। प्रिडिक्ट द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म इफ एन ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल लाइन अंडरगोज सब्स्टिट्यूशन बाय SN1 mechanism. तो व्हेन दे आर आस्किंग ना प्रिडिक्ट द स्टीरियोकेमिस्ट्री, दे आर आस्किंग कि इन्वर्जन होगा, रिटेंशन होगा या रेसमाइजेशन होगा। सो SN1 में क्या होता है बताइए गाइस, व्हाट हैपेंस इन SN1? इन्वर्जन, रिटेंशन या रेसमाइजेशन? टेल मी, जोर से बोले। रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन, है ना? सो वी नो दैट इट इज रेसिमाइजेशन, ठीक। नाउ अब यहाँ पे देखिए आप, नेम द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड फॉर द मेजरिंग measuring the angle by which plane polarized light is rotated. सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ आंसर ढूंढना। देखिए यहाँ कहीं आंसर है, नहीं है ना? अब ये सवाल जो आया ना आपका, दिस इज फ्रॉम इनसाइड द टेक्स्ट, इसका एक आंसर होता है, दिस इज पोलैरीमीटर। पोलैरीमीटर से इसको मेजर किया जाता है।
Predict the major product when 2-bromopentane reacts with alcoholic KOH. इसका आंसर जरा हमको भेजिए इन द व्हाट्सएप. You'll draw the structure of 2-bromopentane. You'll react with alcoholic KOH, है ना? Alcoholic KOH, and then you will tell me what is the product. I have sent the answer. Yeah, major product, very good, correct. बहुत बढ़िया शायद. Aaron has sent. Yes, Aaron, very good, correct. When did the class start? Class started like 45 minutes before. शायद सही नहीं था क्या आज भी टाइमिंग? 12 noon IST, 9:30 AM KST, 10:30 AM UAE. सही तो है? Yes, sir. क्या हो गया? सो रहे थे आप? Yes, sir. अरे तो भाई, हमने तो कल मैसेज कर दिया था आप लोग को लगभग आपके टाइम से, मतलब 9:30 बजे रात में हमने मैसेज कर दिया था क्लास होगी, है ना? Hmm. ख्याल रखना चाहिए आप लोगों को, है ना, कि अलार्म वगैरह लगा लें. एक्चुअली द टीम का कल ऑफ था, तो इस वजह से आप लोगों को मीटिंग लिंक नहीं मिला, लेकिन आई थॉट दैट आई शुड अपडेट यू गाइस कि क्लास तो होगी. चलिए, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है अभी, लेकिन तो सफिया ने उधर भेज दिया था. यस सफिया, वेरी गुड, करेक्ट सफिया. बाकी लोग के आंसर नहीं आ रहे हैं, but I will wait 30 more seconds for this 39th question, and then I will do it myself. इरम, आपने ऑसवाल से स्टार्ट किया क्या क्वेश्चंस करना? No, sir. अरे भाई, कब क्यों लिया है फिर किताब आपने, कब कीजिएगा? टेल मी, है ना, हम वो चाह रहे हैं कि आपने एक बार ऑसवाल से क्या उसमें क्वेश्चन है या सैंपल पेपर, वो भी देखा आपने या अभी नहीं देखा? Question bank है sir. Sample paper. जी जी, बोलिए क्या कह रहे थे आप? Question bank है sir. क्वेश्चन बैंक तो है, लेकिन उसमें आपने, अच्छा चल ठीक है, आप एक बार कीजिएगा तब जाके हमें बताइए. लाइक इज इट लाइक दिस ओनली, या फिर थोड़ा सा इससे अलग है? जैसे इसमें टॉपिक वाइज है बिल्कुल उसी तरह से, या फिर लाइक टू मेनी टॉपिक्स आर इन वन सेक्शन और फिर उसके बाद सारे सवाल हैं? लाइक फॉर एग्जांपल हैलो एल्कीन के सारे सवाल एक साथ, हैलो अरीन के सारे सवाल एक साथ, इस तरह से अरेंज है, कैसे अरेंज है? खुला नहीं है. हाँ हम समझ रहे, खुला नहीं है आपने भी. ठीक है, दिस इज 2-bromopentane एंड व्हेन यू रिएक्ट विद अल्कोहलिक KOH. नाउ अल्कोहलिक KOH इज डीहाइड्रोहालोजेशन. इसमें डीहाइड्रोहालोजिनेशन रिएक्शन होगा बिकॉज अल्कोहलिक KOH है. एक्वस होता तो अल्कोहल बन जाता. ठीक है, सो हियर यू विल हैव NaOH वाला तो अल्कोहल बन रहा था ना. ठीक है, 1 2 3 4 एंड देयर विल बी अ डबल बॉन्ड. अच्छा, अब ये सारी चीजें याद है कि नहीं याद है आप लोगों को पता नहीं. दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा एंड दिस इज आल्सो बीटा. ठीक है, इस बीटा के पास कितने हाइड्रोजन है? दिस बीटा इज हैविंग ओनली 2 हाइड्रोजन्स. This beta is having 3 hydrogens. So it occurs via Setzeff rule. The double bond is formed. The hydrogen leaves from that beta carbon which has less number of hydrogen. ठीक है, so double bond जो बनेगा ऐसे बनेगा. This will be what will be the name? 1 2 3 4 5. So it will be pent
2-ene. This will be the product. Give one use of CHI3. One use of CHI3 is used as antiseptic. ठीक है, और CHI3 जो है actually it is not an मतलब it is not an antiseptic. CHI3 it gives free iodine. Free iodine. This free iodine it acts as antiseptic. ठीक है, लेकिन ये फ्री आयोडीन मिलता कहाँ से? CHI3 से. क्लोरो सॉरी आयोडोफॉर्म है ना, दिस इज आयोडोफॉर्म. Fine. So used as antiseptic, and this is it gives free iodine, which is actually an antiseptic. अब ये जो है ना, write the structure of the products form when anisole is treated with HI. इसको आप रहने दीजिए because it is from the chapter of ethers. ethers. ठीक है, इसको रहने दीजिए आप लोग. अभी ethers का हम लोग जब रिवीजन करेंगे तब जाके हम लोग इसको पढ़ लिया जाएगा. You can see यहाँ पे ना, the cleavage of ethers with HI also is governed by steric factors, the stability of carbocation, which indicates that in organic chemistry, these two factors help us deciding the kind of product form. ठीक है, तो इसको रहने दीजिए. ethers वाला जब सवाल आएगा तो उसमें हम इसको देख लिया जाएगा. कोई ना कोई सवाल होगा एनिसोल और HI का. ठीक है, so you don't have to worry right now. Moving on. देखना है क्या? कुछ लोगों को ऐसा हो जाता है कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा सर. सर बोल रहे हैं बाद में बताएंगे, सर को लगता नहीं आता है. देख लीजिए यहाँ पे बेंजीन रिंग है आपके पास, देन यू हैव OCH3. ठीक है, व्हेन यू रिएक्ट विद HI, यहाँ पे HI में क्या होगा? H पॉजिटिव है, डेल्टा पॉजिटिव, और आयोडीन क्या है? डेल्टा नेगेटिव. तो ऑक्सीजन अटैक करता है हाइड्रोजन पे. नाउ आयोडीन हैज टू अटैच. इट विल आइदर अटैच ऑन द बेंजीन रिंग और इट विल अटैच ऑन द CH3. बेंजीन रिंग में अगर अटैच करेगा देन इट हैज टू ब्रेक दिस बॉन्ड, बट दिस बॉन्ड कैन नॉट बी ब्रोकन. व्हाई? बिकॉज दिस इज partially double bond. Now since this is partially double bond, so this phenol will be as it, oxygen will be as it is, it will connect with hydrogen और फिर आपको मिल जाएगा CH3I. Also the attack of iodine is easy towards CH3. इस पे ज्यादा अच्छे से अटैक कर देगा. It cannot attack on benzene ring because benzene ring is electron rich, repulsion हो जाएगा. ठीक है, तो आयोडीन के पास एक ही जगह है अटैक करेंगे, that is CH3, and oxygen will take the hydrogen. These are the product. खैर, moving on to the next question. बाकी सारे सवाल ना ऐसे ही हैं बिल्कुल, मतलब वही SN1 SN2 भर भर के सवाल हैं इस तरह के. ठीक है, एंड इधर सम क्वेश्चंस इसको साथ ही साथ ले लिया जा सकता है, बहुत सारे सवाल हो जाएंगे. ठीक है, जल्दी से है ना. आउट ऑफ CH2, ये CH2Cl and this CH2Cl, which one reacts faster in SN1 with OH negative? Which will react faster? 42 नंबर क्वेश्चन. 1 मिनट देना चाहिए. आई थिंक आप लोगों को बड़ा टाइम लग रहा है. 1 minute फॉर यू गाइस. 42 नंबर क्वेश्चन. A और B कर लीजिए इस बार ना. ये दिस इज योर A एंड दिस इज B. ठीक है, चलिए आंसर कीजिए A B करके. ओके, इरम हैज आंसर्ड, शाहिद हैज आंसर्ड. रजिता का आंसर आया है. वन वर्ड में देना है आप लोग आंसर. 1 word, मतलब 1 word मतलब A B बता दीजिए इसमें. तो ऐसे सवाल आएंगे ना कि बताओ कौन सा है, तो फिर आप लोग ना वहां रीजन मत लिखने जाइएगा. ठीक है, बस जो आंसर है बस लिख के खत्म. दैट्स इट. जब रीजन पूछे तब रीजन लिखिएगा. चलिए 1 minute इज ओवर. देखते हैं अब सवाल को. ठीक है, ध्यान से देखिए. अब पहला जो है आपके पास, दैट इज साइक्लोहेक्सेन विच इज कनेक्टेड टू CH2 which is further connected to Cl. This is 1 degree carbon, है ना. See the alpha carbon, it is connected to only 1 carbon. अब ये बीटा कार्बन बाकी से कनेक्टेड है, इसको 3 डिग्री मत बोल दीजिएगा. ठीक है, this is the alpha carbon, it is connected to only 1 carbon, 1 degree है. And what about this? This is CH2Cl. अब ये जो है ना आपके पास, दिस इज बेंजाइल. इसका अगर SN1 होगा तो इट विल गिव यू अ बेंजाइल कार्बोकैटायन विच इज वेरी स्टेबल, CH2 पॉजिटिव. ठीक, सो दिस इज वेरी स्टेबल, दैट इज व्हाई B विल बी द करेक्ट ऑप्शन. B ऑप्शन इज करेक्ट. गॉट इट? शाहिद, रजिता, ये सुनो, याद आया नहीं याद आया?
अब ये देखिए मतलब एग्जैक्टली ये सेम चीज हमने अगर लिखाई, शायद लिखाई हो हमने कहीं पे एग्जैक्टली सेम चीज, बट नहीं भी लिखाई हो सकती है एग्जैक्ट, मतलब सेम बिल्कुल एग्जैक्टली ये चीज तो नहीं। एस एन रेट ऑफ एलिमिनेशन नहीं, नेचर ऑफ लीविंग ग्रुप, ये दिखाया हमने रेट ऑफ SN1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बेंजीन रिंग ऑन CX, है ना। CX में जितने बेंजीन रिंग है उस पर डिपेंड करता है। ऑल्सो रिएक्टिविटी ऑफ सबस्ट्रेट, ये हो गया हो गया हो गया, अल्फा सैचुरेशन, ठीक है चलिए यहाँ पे ये चीज लिखा हुआ है। चलिए अगला, वाई इज टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब यहाँ पे वाई पूछा इन्होंने ना, वाई इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन एज कंपेयर टू N ब्यूटाइल ब्रोमाइड। सो अब यहाँ पे द बैरियर दैट यू आर हैविंग, ये टी ब्यूटाइल पता नहीं क्या होता है। रेज योर हैंड इफ यू नो व्हाट, इफ यू डोंट नो व्हाट इज टी ब्यूटाइल। जिनको टी ब्यूटाइल पता है वो तो आंसर करें। दिस इज ए एंड वाई आंसर करें, वाई वाई। ठीक है, रेज योर हैंड इफ यू डोंट नो व्हाट इज टी ब्यूटाइल। रेज योर हैंड इफ यू डोंट नो व्हाट इज टी ब्यूटाइल। व्हाट इज दिस क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन नंबर है आपके पास 43। सबको पता है टी ब्यूटाइल क्या होता है, फिर भी आंसर नहीं आ रहा है। सफिया डज नो व्हाट इज टी ब्यूटाइल। ठीक है चलिए 1 मोर मिनट कहीं आंसर करें। ए बी, अच्छा मतलब रीजन आंसर, ए बी क्या आंसर करेंगे, रीजन आंसर करना है यहाँ पे तो। चलिए ठीक है, यहाँ पे आंसर राइटिंग आप लोग सीखेंगे, है ना। जिनको टी ब्यूटाइल आता है उनके लिए तो आंसर राइटिंग सीखना है, जिनको टी ब्यूटाइल नहीं आता उनको दोनों चीज सीखनी है। चलिए, सो 20 more seconds आई एम वेटिंग फॉर आंसर्स एंड देन आई विल show you how to write the answer. देखिए मोस्ट ऑफ यू हैव मतलब नॉट एग्जैक्टली रिटर्न की, क्यों ज्यादा सही आंसर किसी ने नहीं लिखा है, ठीक है। मतलब आप लोगों को, आई नो दैट यू नो द आंसर बट यू हैव नॉट रिटन द एग्जैक्ट वर्ड जो चाहिए रहता है। दीज आर मतलब दीज आर, उससे क्या हो जा रहा है देखिए, आप लोग सभी लोगों ने ये क्या, क्योंकि ये वो 3 डिग्री है। जिन लोगों को टी ब्यूटाइल नहीं पता वो हम बता दे रहे हैं, दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल। सो कार्बन विच इज कनेक्टेड टू 3 कार्बन एटम्स, 3 methyl CH3 एंड CH3। तो ये 4 हो गए ब्यूटाइल, एंड बिकॉज द अटैचमेंट इज विद द 3 डिग्री, इसको बोलते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल। एंड व्हाट इज दिस? टी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। एंड देन यू हैव N ब्यूटाइल, N ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज नॉर्मल ब्यूटाइल, 1 2 3 4 ब्यूटाइल, एंड देन यू हैव ब्रोमीन। ना वाई इज 3 डिग्री, वही तो सवाल है। वो आपको देखिए, अगर आप लोग ये समझ रहे हैं ना, जिन लोगों ने ये आंसर किया बिकॉज टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज 3 डिग्री, दैट इज वाई इट इज मोर रिएक्टिव, दैट इज वाई इट इज मोर रिएक्टिव। जिन लोगों ने ये आंसर किया है उनको ये लगता है कि सवाल ये जानना चाहता है कि आपको टर्शियरी ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर पता है या नहीं पता है, ठीक है ना। अगर आपको ये लगता है, हाँ अब शायद आपने सही आंसर किया, ठीक है। आप लोग अगर ये कह रहे हैं कि टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज मोर रिएक्टिव बिकॉज बिकॉज इट इज टर्शियरी, अरे तो सवाल में ये टर्शियरी है, ठीक है। तो ये तो रिपीटेटिव हो गया ना, तो सही आंसर तो ये नहीं होगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट। उनके कहने का मतलब टर्शियरी वाला जो होता है वो ज्यादा क्यों होता है रिएक्टिव, तो रीजन इज when it undergoes SN1 the carbocation it forms is what, it is more stable, ठीक है। So this carbocation it is more stable,
Sir, that is because of bulky groups, right? No, that is because of the plus I groups of CH3. CH3s are plus I group, that is why it is more stable. अब ये देखिए Y टाइप ऑफ क्वेश्चंस ना बहुत सारे आ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक तो सबसे पहले ये आ गया कि 3 डिग्री इज मोर रिएक्टिव, ठीक है। तो 3 डिग्री आ जाए या फिर कोई ऐसा स्ट्रक्चर दैट इज 3 डिग्री, अगर ये आ जाए Y is 3 degree more reactive. A Y tertiary butyl bromide is more reactive towards SN1, है ना, for SN1, ठीक है। तो इसका आप आंसर ये नहीं करेंगे बिकॉज इट इज टर्शरी या बिकॉज इट फॉलो बिकॉज SN1 में 3 डिग्री फास्टर होता है इसी वजह से, दैट इज नॉट रियली आंसरिंग द क्वेश्चन। तो इसके लिए आप क्या आंसर करेंगे, बिकॉज इट फॉर्म्स मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, ठीक है। ये आंसर होगा, ये आना चाहिए, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, ये जरूरी है, ठीक है। अब ये पूछा ना व्हाई इट फॉर्म्स मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, अब ये अलग सवाल हो जाएगा, व्हाई द 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन, इसके बाद अगर ये सवाल है ना व्हाई इट फॉर्म्स मोर स्टेबल, तब आप आंसर क्या कर सकते हैं, जो आएगा नहीं बिकॉज कार्बोकैटायन इज नॉट इन योर सिलेबस, वो 11th स्टैंडर्ड में आता, बिकॉज इट हैज 3 alkyl groups, 3 alkyl groups which show plus I effect। अब अगर ये था ना व्हाई इट फॉर्म्स मोर स्टेबल, तो यहां पे ये प्लस आई इफेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट वर्ड, प्लस आई इफेक्ट नहीं रहेगा मार्क्स नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है, आंसर कैसे लिखना है, सोनो प्लीज टेल मी। अगर आपको 3 डिग्री के बारे में सवाल आया तो बस यहीं तक इतना लिखना है, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, इसके आगे आपको जवाब देना ही नहीं है, ठीक है। वो 11th स्टैंडर्ड आ जाएगा फिर, ठीक है। आपने क्या सीखा है 12th में कि इट फॉर्म्स कार्बोकैटायन इज व्हाट, इट इज द बैरियर, इफ दिस कार्बोकैटायन इज स्टेबल then our SN1 will be faster, if the carbocation is not stable the SN1 will be slower। एक बार yes or no बोल के बताइए, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बात क्या कहना चाह रहे हैं हम, yes or no बोलो। Yes, sir. असलान, आयशा, डेबोरा, रजिता, Yes, sir. Understood, sir. Yes, sir. ठीक है। इरम आपको समझ में आया, Yes, sir. ठीक है। तो इस चीज का ध्यान दीजिए। अब यही रीजन है, कुछ नई बात हमने नहीं बताई आप लोगों को, ऑल ऑफ यू न्यू इट, बट लिखना क्या है ये नहीं पता रहता, इस वजह से कई बार आप लोग के मार्क्स नहीं आते, है ना। तो क्या लिखना है, वो वर्ड्स सब आपके पास बहुत जरूरी है। यहाँ पे जब भी आपके पास SN1 के बारे में आए ना, तो ये जरूर आना चाहिए, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, ठीक है, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन जरूर आना चाहिए। इसके आगे अगर आप लिख सकते हैं ड्यू टू ऐसे करके, ड्यू टू 3 alkyl group which shows plus I effect, that is additional, लेकिन ये तो जरूरी ही जरूरी है ना, ये बहुत जरूरी है। चलिए मूविंग ऑन, ये बताइए 44th वाला, आउट ऑफ क्लोरोबेंजीन इसको ले लेते हैं A एंड साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड इसको ले लेते हैं B, विच वन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बताइए A और B इन द चैट। अब यहां पे सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है किसकी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, ठीक है। Okay, Hiram has answered. चलिए 1 more minute guys। Nine more seconds, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। चलिए now see both of you are having both of you are
All of you have given almost right answer except for Fia. Fia, we have just seen that chlorobenzene will not give SN because this carbon chlorine bond, it has partial double bond character, right? That's why it is not reactive. Yes, Fia? So B1 is more reactive, ठीक है? Cyclohexyl but chloride. chlorobenzene was reactive before, right? That was not chlorobenzene, that was benzyl chloride. ये वाला था ना? This one. Which ones? ये जो हम यहाँ पे ये कर रहे हैं, देखिए. हाँ? Okay, sir. That is not chlorobenzene ना? यहाँ पे ये B वाला देखिए. We're talking about this one, right? Yes, sir. That is not chlorobenzene ना? That is benzyl chloride. ठीक है? तो आप देखिए, हाँ ये होता है दिक्कत, ठीक है? डोंट हैव टू वरी. क्लोरोबेंजीन और बेंजाइल क्लोराइड में बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है, ठीक है? इवन आई हैड डिफिकल्टी व्हेन आई वाज इन फर्स्ट स्टैंडर्ड, ठीक है? तो क्लोरोबेंजीन और बेंजाइल क्लोराइड के बारे में अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है? बेंजाइल का मतलब होता है बेंजीन रिंग विद अ कार्बन एटम, ठीक है? बेंजाइल का मतलब बेंजाइल व्हेन यू आर एडिंग YL. चलिए, नाउ व्हाई? बिकॉज द CCl bond in cyclohexyl chloride is weaker compared to CCl bond in chlorobenzene, as it has, which has partial double bond due to resonance. ठीक है? अब यहां पे आपके पास ना देखिए, is weaker compared to CCl bond, इतना भी चलेगा. which has partial double bond, इतना भी चलेगा. अब ये देखिए, why it is more reactive? Because CCl bond in this is weaker compared to this bond. ठीक है, यहीं तक खत्म हो गया. Why the CCl bond is weaker? तो फिर because the chlorobenzene has partial double bond. Why it has partial double bond? Due to resonance. आपको लेवल समझ में आ रहे हैं सवाल के? Yes or no, please tell me guys. बोलो भाई, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अरे Yes, sir. समझ में आ रहा है ना? तो आप लोग देखिए आंसर इतना लेकिन करना जरूर आप लोग, ठीक है? अब सीधा यहां पे मत जंप कर दीजिएगा, ड्यू टू रेजोनेंस लिख देते सब कुछ हो जाएगा. नो, यू हैव टू आंसर ईच स्टेप, ठीक है? इतना लिख दे काफी है आपके लिए, हम तो बोलेंगे. वीकर लिख दीजिए, काफी है आपके लिए, ठीक है? इफ यू आर राइटिंग विच हैज पार्शियल डबल बॉन्ड, दैट इज आल्सो गुड. ड्यू टू रेजोनेंस कंप्लीट हो गया. It will undergo resonance only when it has a double bond. No. What, Priya? Can you repeat it? It will undergo substitution reaction only if it has a partial double bond. No, why are you getting that idea? I don't understand. No, sir, I don't understand this concept. We are saying C. I studied actually, but I don't understand like now what you are saying. CCl bond in cyclohexyl chloride is weaker compared to CCl bond in chlorobenzene. Now this chlorobenzene, which has, है ना, in chloro, which has partial double bond. Chlorobenzene is having partial double bond due to resonance. अब जब partial double bond होगा तो ये break नहीं करेगा ना. If it is not going to break, then how the SN will take place? नहीं. What happened? Yes, Fia? Sir, which has partial double bond? You tell me. Fluorobenzene. That's it. Okay, sir. है ना? Weaker compared to which has partial double bond. The CCl bond in chlorobenzene has partial double bond, है ना? चलिए, moving on. Which alkyl halide from the following pair would you expect to react rapidly by SN2? SN2 में कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? So you just need to do 1 degree, 2 degree, 3 degree. उसके बाद आंसर कर दीजिए आप. Yes, Rajita correct, Ram correct, very good. 1 more minute guys, this is very easy. इसमें बस आपको 3 क्यों लिख रही हैं फिर आप?
You have to tell me A or B ना, ये A है और this is B. There are not three structures, A and B. Here you need to revise the haloalkane halorine chapter. यार ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है. SN2 मैकेनिज्म, जितना बल्कि ग्रुप होगा उतना लोअर रिएक्टिविटी होता है. Here, when was the last time you read the haloalkane halorine chapter? Before 2 weeks, sir. हमने तो रिवाइज कीजिए ना, हमने पहले भी कहा था आप लोगों को, लाइक व्हेन यू आर कमिंग फॉर दिस टाइप ऑफ क्लास जहां पे आपको हम सवाल करा रहे हैं, है ना. ठीक है. एंड आई डोंट थिंक कि इफ आई एम गोइंग टू टीच haloalkane halorine दैट विल बेनिफिट यू मोर. आप बताइए, आपको कितनी सारी नई चीजें पता चल रही हैं? बताइए, इज देयर एनी कंसेप्ट न्यू टू यू गाइस? टेल मी व्हेन आई एम आंसरिंग दीस थिंग्स. No, sir. नहीं ना. आपको सिर्फ क्या नया पता चल रहा है कि आंसर, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता थी लेकिन आंसर नहीं समझ में आ रहा कैसे लिखें. सो आई वांट टू टीच यू दैट राइट नाउ. थ्योरी तो हो गया, कोई नई नई थ्योरी कहीं आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी. ठीक है. सो यू रिवाइज haloalkane halorine और यहाँ पे आप लोग आइए आंसर सीखने के लिए. आंसर कैसे करना है, बेसिक चीजें ना क्लियर होनी चाहिए, अदरवाइज वो बहुत डिफिकल्टी होगी पढ़ाने में भी, आपको पढ़ने में भी. Now since this is 2 degree, this will be more reactive. ठीक. Chlorobenzene and benzyl chloride, which one gets easily hydrolyzed by aqueous NaOH? अब देखिए बहुत सारी चीजें इसमें ना बच्चों को पता होनी चाहिए. अगर आपको ये नहीं पता कि aqueous NaOH कैसा रिएक्शन शो करता है, then how will you answer? So aqueous NaOH it shows SN, और अगर अल्कोहलिक होता तो एलिमिनेशन शो करता है ना. एंड दे आर आस्किंग व्हाई. क्लोरोबेंजीन और बेंजाइल क्लोराइड में कौन देगा? क्लोरोबेंजीन इज like this and benzyl chloride is CH2Cl. ठीक है. So when they are generally asking, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, they are asking about which will get easily hydrolyzed by aqueous NaOH. हाँ, A और B, ये पहले बता दीजिए आप लोग, A और B कौन आसानी से SN देगा. बेसिकली वो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, है ना. And they are also trying to see whether you know that this reaction with aqueous NaOH, ये SN होता है या नहीं होता, ये भी पता है कि नहीं आपको. ठीक है. आयशा एंड इरम करेक्ट. इरम यू नीड टू आंसर वाई का आपने आंसर नहीं किया है. हाँ सफिया करेक्ट, वेरी गुड. SN1 SN2 तो हम लोगों ने बहुत देख लिया. अब कुछ हम लोग कुछ Cl is far from benzene, ऐसे लिखिएगा यार हम, Cl is far from benzene. You guys can see that this is what, this is CH2Cl, है ना. और यहाँ पे आपके पास क्लोरीन है which is attached on chlorobenzene. So this is more reactive, benzyl chloride. Now when you answer Y, तो Y का आंसर होगा because CCl bond, because CCl bond in chlorobenzene. अरे ये यही आंसर है जो हम लोगों ने पहले लिखा था ना. यहाँ पे ऐसे लिखना है कि CCl bond in like this is weaker compared to CCl bond which has partial double bond. ये this is less reactive. आपको ये आंसर कर देना कि this why it is less reactive because of partial double bond. ठीक है. ये मैंने इसके साथ तो कोई भी आ जाता है ना, तो भी आपका सेम ही आंसर आ जाता है. क्लोरोबेंजीन आ जाए then you are going to answer कि this will not show faster reaction because partial double bond character. ठीक है. अगर सवाल आया आपसे कि why is benzyl fluoride more reactive, why is benzyl fluoride more reactive, अब जैसे देखिए ऐसे जो आपने आंसर किया ना वो भी चलेगा. ठीक है, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन that answer will be more specific या more right if they ask why benzyl chloride is more reactive. आपको समझ में आ रहा है ना आयशा हम क्या कहना चाह रहे हैं? And also the reason.
ये साइशा टेल मी, आपने जो आंसर किया है दैट इज करेक्ट, बट इट इज ओनली आंसरिंग द फैक्ट कि आपके पास वाई दिस इज गोइंग टू गिव यू फास्टर रिएक्शन, ठीक है। लेकिन ये फास्टर रिएक्शन शो कर रहा है, इससे हमको मतलब उतना नहीं है, क्योंकि इफ यू आर हैविंग क्लोरोबेंजीन ये तो हमेशा ही लेस रिएक्टिव होगा। सो इन एडिशन टू दैट यू विल आल्सो हैव टू ऐड दैट क्लोरोबेंजीन में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, ठीक है। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि बिकॉज बेंजाइल क्लोराइड गिव्स रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटायन, ठीक है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर करेक्ट, बट यहाँ पे ना आप कुछ स्पेसिफिक्स देखिए। कार्बोकेटायन बोला, दैट मींस यू आर अज्यूमिंग कि SN1 हो रहा है ना। लेकिन कहीं पे यहाँ पे उन्होंने SN1 के बारे में नहीं पूछा है, दे आर आस्किंग अबाउट जनरल SN। तो जनरल SN में हम सिर्फ क्या करते हैं, RX बॉन्ड टूटता है और आपके पास क्या आता है, R न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बनता है, ठीक है। सो इन जनरल व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट जनरल SN रिएक्शन, तो सिर्फ हम इसको देखते हैं कि RX बॉन्ड कितनी आसानी से टूटेगा या फिर RNU बॉन्ड कितनी आसानी से बनेगा। तो बेसिकली यही है, RX बॉन्ड कितनी आसानी से टूटता है, ठीक है। तो ये आपको लिखना ही पड़ेगा, दैट क्लोरोबेंजीन इज हैविंग पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन। अब वी हैव सीन मेनी SN1 SN2 वगैरह हम लोगों ने बहुत ज्यादा देख लिया। अब हम लोग चलते हैं कुछ दूसरी तरफ, ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स दी रिएक्शंस। रिएक्शन में देखिए आपको आंसर राइटिंग बहुत ज्यादा नहीं आनी चाहिए, अगर आपको रिएक्शन आता तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस वजह से रिएक्शन को हम बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, रिएक्शन आपको या तो सही है या तो गलत है ना। और अगर गलत है तो आपको क्योंकि नहीं आ रहा था इस वजह से गलत है, आपको रिएक्शन पढ़ना पड़ेगा। आंसर राइटिंग में क्या होता है, आपको आ रहा होता है फिर भी आंसर आप सही नहीं लिख पाते, इस वजह से आंसर राइटिंग पे हमने इतना ज्यादा फोकस किया है अभी। चलिए लिखिए जरा, सेंड द आंसर ऑन माई व्हाट्सएप। Guys, one more minute for this. I have got an answer. Let's see, theorem का आंसर आया। सही से बॉन्ड बनाई एरम, ये तो आपने बेईमानी कर दी। CN के बीच में बॉन्ड बना दिया आपने। अब बताइए CN बॉन्ड बनता है या NC बनेगा, AgCN है तो। ऐसा मत कीजिएगा यार, इसमें क्या बोलते हैं आपका एग्जाम, ये मत कीजिएगा कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बना दिया आपने। NC बॉन्ड होगा या CN बॉन्ड होगा, सही से बनाइए, या फिर टेल मी इन द चैट CN और NC। बाय द वे गाइस 1 मिनट इज ओवर, आंसर एक ही आया। हाँ ठीक है रम, फाइन देन। सी द फर्स्ट रिएक्शन, वी हैव 3 carbon atoms and we have OH. It will react with PCl5 and it is going to replace the OH with chlorine. Simple reaction. Then when it reacts with AgCN और KCN वाला आप लोग याद रखना है, जब भी आपके पास Ag आए तो बॉन्ड नाइट्रोजन से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। सो यू हैव NC, साफ साफ। अगर यही अगर रिएक्ट करता AgNO2 से तो क्या होता NO2,
वो लिख रहे हैं NO2 बोल के, NO2, ठीक है। यही अगर रिएक्ट करता KCN से, then it will have been CN। अगर यही रिएक्ट करता KNO2 से, then it would be ONO। ठीक है, देखिए रिविजन भी हो ही जाता है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ सवाल हो रहे हैं। देखिए एक रिएक्शन पूछा, लेकिन हमने कितने चार रिएक्शन, तो तीन चार रिएक्शन और बता दिया आपको, ठीक है ना। द नेक्स्ट वन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। यहाँ बच्चे थोड़ा सा इनकी मुश्किल हो जाती है कि क्लोर, यहाँ पे आपके हैलोल्केन है, देन यू हैव KOH, अल्कोहल बनेगा नहीं, बिकॉज वी हैव इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है? अल्कोहल होता है, राइट। सो वी आर हैविंग अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH में व्हाट इज हैपनिंग? dehydrohalogenation, एलिमिनेशन रिएक्शन। सो यू हैव 1 2 3 कार्बन एटम्स, और इसमें एक लगा हुआ है क्लोरीन, इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, और क्या है आपके पास? इथेनॉल। देन क्या होगा? यू विल हैव dehydrohalogenation like this, then you are having HBr। HBr से क्या होता है? एडिशन। एंड व्हाट टाइप ऑफ एडिशन? peroxide है? नहीं, peroxide नहीं है। लाइट है? नो, लाइट इज आल्सो नॉट देयर। दैट मींस दैट इज Markovnikov addition। In Markovnikov addition, the negative part of the reagent, it attaches to that carbon which has less number of hydrogen। That means you will get more substituted product like this। ठीक है। अब ये रिएक्शंस अगर आप लोगों को नहीं आ रहे, दैट मींस यू हैव टू, आपको क्या करना है? आपको करना है प्रैक्टिस। अब देखिए आपसे, आप अगर सीक्वेंस वाले रिएक्शन कर रहे हैं ना, तो आपकी प्रैक्टिस हो रही है किसके लिए पता है? कन्वर्जन के लिए। ये देखिए एक चीज का कन्वर्जन भी है। सवाल ऐसा आ सकता है ना, हाउ विल यू कन्वर्ट वन क्लोरो, यार एक सेकंड रुक जाओ, अच्छे से लिखते हैं। 1 क्लोरो प्रोपेन टू 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, इस तरह के सीक्वेंस हमने इतना पढ़ाया है ना, आप लोगों ने ऑर्गेनिक कन्वर्जन वाला रिएक्शन वो देखा नहीं है किसी ने। ये तो इतनी सारी चीजें बताई ना। लेस सब्स्टिट्यूटेड से मोर सब्स्टिट्यूटेड जाना है तो मार्कोनिकॉव कहीं ना कहीं आएगा। मोर सब्स्टिट्यूटेड से लेस सब्स्टिट्यूटेड जाना है तो एंटी मार्कोनिकॉव कहीं ना कहीं। देखो ना, अगर आपसे यही से कितने सारे सवाल हो जाते हैं ना, मतलब आप लोग बोलिए ओ माय गॉड। 2 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है, 2 ब्रोमो प्रोपेन से हमको कहाँ जाना है? मान लीजिए आपके पास 1 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। सो मोर से लेस सब्स्टिट्यूटेड, दैट मींस एंटी मार्कोनिकॉव। कैसे होगा? देखिए, Br is here, then you have alcoholic KOH, ठीक है। then you will get alkene, alkene के बाद डालिए आप HBr in the presence of HNO या peroxide, ठीक है। और आपको क्या मिल जाएगा? पहले वाले ब्रोमीन पे इस तरह से मिल जाएगा। मतलब आपको लगेगा सर उधर वाले कार्बन का डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो एक सेकंड, Br like this। बात समझ में आ रही है? यस सर, नो सर, कुछ तो बोले। बात समझ में आ रही है? यस नो? यस सर। हम Sir, what do you mean by more substitute and substitute? मोर सब्स्टिट्यूटेड, लेस सब्स्टिट्यूटेड, ओ माय गॉड। देखिए ये देखिए, यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप्स है ना, ठीक है। मोर सब्स्टिट्यूटेड, यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप है, एक ग्रुप लगा हुआ है ना। 2 कार्बन मत बोल देना भाई प्लीज, एक ग्रुप लगा हुआ ना, लेस सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। आपने अभी तक तो देखा नहीं है रम कन्वर्जन वाला, देखा आपने वीडियो? Yes, sir. नहीं देखा है आपने। देखा होता तो क्यों पूछती हैं आप मोर नहीं देख सब्स्टिट्यूटेड? हाँ, वहां तो हमने पढ़ाया नहीं, पढ़ाया है। से आधा देखा है। हाँ देखिए, कहाँ देखा है फिर? आधा देखा, आधा 15 मिनट देखे होंगे आप लोग बस, है ना। वो देखिए भाई, बैठ के उसको थोड़ा सा दिमाग ये करके नहीं देखना पड़ेगा, उसको देखिए प्लीज, देखिए उस चीज को, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन। मतलब कन्वर्जन तो हम अब कैसे ही कराएं, हमको तो इतना डर लग रहा है कन्वर्जन कराने में आप लोगों को, कि जो कन्वर्जन के कंसेप्ट हैं वो हमने पढ़ाए हुए हैं वहां पे, आप लोगों ने अभी तक कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं देखी है। और फिर आप लोग हमको मजबूर करेंगे कि नहीं सर, हम लोग को अलग से फिर आप क्लास लीजिए कन्वर्जन का, है ना। वही करना पड़ेगा। आप लोग तो बिल्कुल ही क्या बताएं हम। हाउ विल यू कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन टू बाइफिनाइल? क्या ही रिएक्शन है ये, है? क्या ही रिएक्शन है ये, क्लोरोबेंजीन, ठीक है, प्लस Na इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। फेटिक रिएक्शन, टिपिकल फेटिक रिएक्शन, ठीक है। बाइफिनाइल मिल जाएगा आपको इस तरह से, खत्म होगी बात, कुछ है ही नहीं इसमें। फर्स्ट रिएक्शन है। सेकंड रिएक्शन, 2 ब्रोमोब्यूटेन, Br लगा हुआ है यहाँ पे, से क्या बनाना है? ब्यूट 2 इन बनाना है। क्या ही रिएक्शन है ये, अल्कोहलिक KOH, हो गया खत्म। क्या ही रिएक्शन है। ऐसे आप लोग रिएक्शन करें तब तो कोई बात, कोई रिएक्शन ही है सब। ला 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 ला।
हाँ, इसमें ना अब देखिए कुछ चीजें हम बता रहे हैं आप लोग को। इन दिस क्वेश्चन, ये हम एक क्वेश्चन रखने वाले हैं। गिव रीजंस। ग्रीनर reagent should not be prepared under anhydrous condition because ये इसका reason हम लोग देख लिया, because it forms alkene, है ना, with water। मॉइस्चर मिलेगा, alkene फॉर्म कर लेगा। alkene halides are immiscible in water though they are polar, absence of hydrogen bond, ठीक है, absence of hydrogen bond। this is important। chloroform is stored in dark colored bottles filled to the brim। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला बताइए, तो किसी को पता है व्हाट इज क्लोरोफॉर्म? क्लोरोफॉर्म इन द चैट प्लीज। आंसर है CHCl3, है ना, नॉट CCl4 रजिता। क्लोरोफॉर्म इज CHCl3। सो आपके पास क्लोरोफॉर्म है, दैट इज CHCl3। नाउ व्हेन यू आर गोइंग टू कीप इट इन, इट इज स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल फिल्ड अप टू द ब्रिम। तो डार्क कलर रखने का मकसद ये है कि कोई भी लाइट वहां पे एंटर ना करे। लाइट अगर एंटर करेगा तो ऑब्वियसली, अच्छा दो चीजें हैं, ब्रिम तक मतलब बिल्कुल फिल करके रखा जाता है, दैट मींस देयर इज नो एयर। एयर रहेगा और लाइट मिलेगा तो ये रिएक्शन करेगा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। एंड व्हेन इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स अ पॉइजनस गैस, दैट पॉइजनस गैस इज नोन एज फॉस्जीन। ठीक है, फॉस्जीन बनाता है। has a formula COCl2 cis phosgene plus HCl। ठीक है, दैट इज द रीजन इट इज नॉट केप्ट ऐसे ही। इसको रखा जाता है कहाँ पे? इन डार्क कलर्ड बॉटल्स। चलिए मूविंग ऑन। मूविंग ऑन, लेट अस सी अगर और कोई रिएक्शन हो बढ़िया सा। SN की ही बहुत सारे रिएक्शन है, उसके बाद मतलब कुछ खास ऐसे ये नहीं है। आपके पास ये सवाल है थोड़ा सा, जिसको आप अच्छा सवाल कह सकते हैं। among the isomers of molecular formula C4H9Br। ठीक है, आपके पास आइसोमर बनाना आना चाहिए। अब C4H9Br का हमने आइसोमर्स बनवाया है ना, इसी का बनवाया है, बिकॉज ऐसे सवाल आते हैं, बहुत सारे सवाल हैं ऐसे। C4H9Br कैसे बनाएंगे? देखिए, 4 कार्बन को आप या तो ऐसे रख सकते हैं या फिर आप ऐसे रख सकते हैं। देयर आर ओनली 2 ways in which you can keep the 4 कार्बन एटम्स। अब इससे 2 आइसोमर बनते हैं, कौन कौन से? एक बार आप 4 कार्बन रख दिया और ब्रोमीन इधर लगा दीजिए, और एक बार आपने 4 कार्बन रख दिया, ब्रोमीन इधर लगा दीजिए। 2 तरह के कार्बन एटम से यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री, उसी में ब्रोमीन लगा दीजिए। यहाँ से भी आपके पास फ्रॉम दिस टाइप ऑफ 4 कार्बन एटम्स, इससे भी आपके पास 2 आइसोमर निकल सकते हैं। यार इतना लॉजिकल करके हम पढ़ाते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया करो। ठीक है, ये आपके पास है इस तरह से 3 4, और यहाँ पे आपने ब्रोमीन लगा दिया। एक इस तरह का बन सकता है और दूसरा कैसा बन सकता है? 1 2 3, और इधर आपने ब्रोमीन लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे भी 2 टाइप के कार्बन एटम है, 1 डिग्री एंड 3 डिग्री। हियर आल्सो यू आर हैविंग 2 टाइप्स ऑफ कार्बन एटम, देयर आर 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव? बताओ भाई, कौन सा है ऑप्टिकली एक्टिव? ABCD, दिमाग ही नहीं चलेगा किसी का। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। CH3, ये कार्बन तो नहीं हो, CH2 ये कार्बन नहीं हो सकता ऑप्टिकली। अच्छा, किसी का आंसर आ गया, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, एक दो और क्या आ गया? नो रजिता, नॉट राइट। दिस कार्बन एटम, ये कार्बन में तो 3 CH3 है, तो सेम हो गया ना। ऑल दीज कार्बन एटम्स आर आल्सो हैविंग 3 हाइड्रोजन, तो सेम हो गया, हो ही नहीं सकता यहाँ पे। ठीक है, हाँ शायद का सही है। ठीक है, सी ईयर गाइस, देखिए देखिए ये दिक्कत है भाई, आप लोग थोड़ा सा पता नहीं रिवाइज वगैरह करते हैं, ठीक से कीजिए। यहाँ पे आपके पास 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे आपके पास 1 हाइड्रोजन। व्हेन यू हैव 1 हाइड्रोजन देन यू विल स्टार्ट लुक। जब आपके पास 2 हाइड्रोजन हो तो देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू नीड टू हैव 4 डिफरेंट ग्रुप। एंड अगर 2 हाइड्रोजन ही सेम हो गए तो फिर वो ऑप्टिकली एक्टिव हो ही नहीं सकता है। दिस, तो यहाँ पे एक CH3 है, हियर यू हैव C2H5 एंड हियर यू हैव ब्रोमीन, और 1 हाइड्रोजन बचा। ऑल दीज 4 आर ग्रुप
and all of these are different. That is why B is optically active. The one isomer which is highly reactive towards SN2 कौन सा बताओ? SN2 की तरफ कौन सा reactive होगा? ला 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 ला, बोलो भाई बोलो, कौन reactive होगा? ABCD में कौन reactive होगा towards SN2? Yes, शाहिद correct, very good. SN2 1 डिग्री 2 डिग्री में बैठाओ, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में बैठाइए भाई, आंसर तुरंत आना चाहिए, इसमें टाइम लगना नहीं चाहिए। SN1 SN2 में 1 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री, और फिर ये आपके पास क्या है, दिस इज 3 डिग्री, ठीक है। ऑब्वियसली आपको यहाँ पे नजर आ रहा है दैट दिस 1 डिग्री इट हैज अ बल्की ग्रुप, यहाँ पे आपके पास बल्की ग्रुप ज्यादा नहीं है, ठीक है। दैट इज वाई ए विल बी मोस्ट रिएक्टिव, ए विल बी मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड SN2. The two isomers which give the same product on dehydrohalogenation of alcoholic KOH. Now, if you see 1 2 3 4 Br, ठीक है, 1 2 3 4 और यहाँ पे भी Br, इन दोनों का अगर अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इसमें तो बस दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, इसमें नहीं आएगा, नहीं सॉरी नॉट दिस वन, माय बैड, नॉट हियर, यहाँ पे नहीं आएगा, इन दोनों में आएगा, C और D में Br, ये अल्फा कार्बन, हियर यू हैव ओनली 1 बीटा कार्बन, ठीक है, और दूसरा आपके पास है इस तरह से Br, दिस इज अल्फा, बाकी सारे बीटा तो सेम ही है, इन दोनों से ही अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बनाइएगा, देन यू विल हैव समथिंग लाइक दिस, दैट्स ऑल, ठीक है। सो बोथ ऑफ दीज आर गोइंग टू गिव यू सेम प्रोडक्ट। इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको अच्छे से कीजिएगा एक बार, आई होप कंसेप्ट्स यहाँ पे कोई आपके डिफिकल्ट नहीं है, प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ट्राई टू मेक ऑल दी डिफरेंट आइसोमर्स, और लेट मी सी इफ देयर इज एनी टिपिकल क्वेश्चन जो कि कर लेना चाहिए आप लोगों को। ला 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 ला। अब मतलब क्या ही बोले हम आप लोग को, इसका आंसर आना चाहिए, थोड़ा सा लीक से आपके हट के सवाल होगा, बट देखते हैं कितने का आंसर आता है, कितनों का आंसर आता है यहाँ पे, है ना। दिस इज ऑल्सो देयर इन योर नोटबुक। चलिए बताइए जरा आंसर, खत्म करते हैं फिर क्लास को, है ना। तो हैलोल्किन हैलोरीन ऑल यू कैन सी दैट इट इज ओवर ओनली, है ना, क्या ही बचा अब। लेकिन ना अब ना अगला चैप्टर ना पढ़ के आइएगा प्लीज, है ना, नहीं पढ़ के आइएगा फिर मजा ही क्या आएगा, ठीक है, प्लीज पढ़ के आइए आप लोग, ये बड़ी दिक्कत की बात है, अब नहीं पढ़ के आइएगा तो फिर हमको पढ़ाना पड़ेगा फिर से, है ना। रिवीजन में वो टिपिकल फिर रिवीजन कराएंगे, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा ना, टाइम थोड़ा बचाइए आप लोग, खुद से रिवाइज कीजिएगा ना। देखिए दिक्कत क्या होती है ना, हम रिवीजन क्यों नहीं कराते जनरली, मतलब वो पूरा पूरा चैप्टर होता है ना, लेके बैठ के पढ़ाओ एक बार में, आई रियली डोंट फील कि उसमें बहुत ज्यादा कुछ इफेक्टिव होता है, आपको एक बार बैठ के उस चैप्टर को पढ़ना ही है, मेरे रिवाइज कराने से क्या होगा, ठीक है। दूसरी चीज, अब देखिए मान लीजिए अरसलान रिवाइज कर रहे हैं, आयशा कर रही है, फिया, इरम, ऑल ऑफ यू आर रिवाइजिंग, तो आपको अलग अलग सेक्शंस में प्रॉब्लम है, आप लोग उन सेक्शंस को ज्यादा फोकस कीजिएगा। हम जब रिवाइज कराएंगे तो हम तो सब मतलब एक ही रिवीजन होगा ना, हम सबको अलग अलग तो केटर नहीं कर सकते, और हमको क्या पता अरसलान को एग्जैक्टली दिक्कत कहाँ पे है, वो अरसलान ज्यादा अच्छे से समझेगा जब वो खुद से पढ़े। तो खुद से थोड़ा बैठिए आप लोग, ठीक है, रिवाइज करना चालू कीजिए, पेन कॉपी लेके, प्लीज हैव अ पेन एंड पेपर वेन एवर यू आर रीडिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑल्सो। पॉइंट्स है, रिएक्शन है, रिएक्शन लिखा, रिएक्शन है, रिएक्शन लिखा, ठीक है। इसका आंसर आया क्या किसी का? हाँ ठीक है आया, किसी किसी का आया, ओके, इरम, आयशा, सफिया एंड डेबोरा, वेरी गुड, सही है, वेरी गुड गाइस। एल्कीन डीक्लोराइज ब्रोमीन वाटर इन द प्रेजेंस, ये CCl4 उन्होंने ऐसे दे दिया, CCl4 सॉल्वेंट होता है ना, CCl4 इज सॉल्वेंट, एल्कीन भी नॉन पोलर, ब्रोमीन भी नॉन पोलर, CCl4 भी नॉन पोलर, तभी नॉन पोलर डिसॉल्व्स नॉन पोलर, पोलर डिसॉल्व्स पोलर, लाइक डिसॉल्व्स लाइक वाला फॉर्मूला है। CCl4 इज जस्ट अ सॉल्वेंट, क्या देगा आपको? विसिनल डाइब्रोमाइड देगा, ठीक है, दैट इज वाई। ये भी आई होप हमने यहाँ पे कहीं लिखा हुआ हो, इन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन हैलोरीन ना,
वहां पे एक है आपका वाई वाया एल्कीन। एल्कीन में एल्कीनेशन ऑफ एल्कीन gives occurs in dark using halogen light. In the presence of peroxide, ये तो विसिनल डाइहाइलाइट का ही हो गया। यहाँ पे हम पढ़ा देते हैं, ये ब्राउन कलर का होता है एंड इट डीकलराइजेस द